So, good morning, everyone. Hi, this is Janish Kothai here from Wisdom Commerce Classes, and welcome to our video of French. So, students, in this particular video, I'm going to start with the second chapter. I'm going to explain you the entire comprehension part, the first chapter part, and we're going to solve some exercises. So, let's start. So, before starting, students, I would just ask you guys to please go and subscribe to our channel if you haven't yet, and like our video, and please share it amongst your friends. I feel that the video is going to be really very helpful to all the French students. So this is our 11th standard textbook and second chapter. So let's start, students. The name of the chapter is Seki. Seki means who is this? Who is this? That's the name of the chapter. Who is this? God knows who keeps such kind of name of the chapter, but ठीक है. So students, हमने previous chapter के अंदर already थोड़े बहुत characters के नाम देख लिए थे. ओके थोड़े बहुत फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे कैरेक्टर्स के नाम नील जो इंडियन था, ईरा भी इंडियन थी, माया जो मॉरिशियन थी, एंड एब्दिल आई गेस एब्दिल वाज अल्जेरियन. सो ये चार कैरेक्टर्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके थे स्टूडेंट्स. आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड देयर आर फ्यू मोर कैरेक्टर्स गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर और देखेंगे हम लोग चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. Abdel, Ira, and Neil saw all the cafeteria. So students, there are three characters. Abdel, Ira, and Neil are in the cafeteria. So students, they are sitting in the cafeteria. Full stop. So Abdel says, "Oh, walla le sutra." So I is basically, oh, there are others. There are others. So हो सकता है वो लोग already cafeteria में बैठे थे और बाकी सारे बच्चे अब आ गए हैं. तो Ira is an Indian student. So Ira says, Abdel, comma, Seki again, the name of the chapter. Who is this, comma, the tall boy? Who is this, comma, the tall boy? Question mark. And likha il a de shavo blonde. So he has blonde hair. Blonde is basically students बोल सकते golden hair. तो ईरा ने किसको पूछा स्टूडेंट्स? ईरा ने अब्दुल को पूछा कि अब्दुल ये कौन है? Who is that tall boy? Okay, बाकी सारे बच्चे वहां से आ रहे थे. So Abdul says, say Robert. So this is Robert. This is Robert. Full stop. He's Canadian. So students, यहाँ पे Robert कौन है? Canadian है. So to learn all the names of the new characters and also their nationalities. He is handsome, comma, isn't it? Question mark. So students, तुम लोग देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है. ईरा एक इंडियन है स्टूडेंट्स. वो फ्रांस जाकर she's just looking at the guys, randomly guys, and she's asking Abdul कि भाई वो कौन है. Now moving forward to next one, Neil. Again, Neil is also an Indian student, so Neil भी पूछ रहा है. अब नील ने पूछा and the girl, ये feel. So basically लोग वहाँ फ्रांस से जाने का लड़कियां या लड़के ताड़ रहे हैं. हा no problem. And the thin girl with brown eyes, and the thin girl with brown eyes. देखो उन्होंने एस्ट्रिक मार्क किया और एस्ट्रिक मार्क को नीचे पेज नंबर 35 के लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट लाइन में देखो तो बताया with brown eyes. And the thin girl with brown eyes, comma, who is this? So अब ये क्वेश्चन किसने पूछा है? नील ने पूछा है. नील ने किसको पूछा है? अब्दुल को पूछा है. So Abdul says this is Aisha. Now Aisha is my favorite character, students, personally, in the entire textbook. She is Tunisian. Okay. So students, again, Tunisia करके एक country and it's a very very beautiful country. अगर आप लोग Google करोगे Tunisia करके, it's a nice country and Aisha is from that particular country. Now the entire, तो ये लोग दूर खड़े रहकर बाकी बच्चों को देख रहे थे. उतनी देर में क्या हुआ? The group arrives. The entire group arrives. अब सारा ग्रुप आ चुका है स्टूडेंट्स वहां पर. So नील ने सबको बोला hi, je m'appelle Neil. So basically hi, my name is Neil. Okay, full stop. And what is your name? तो अब वो बाकी सारे बच्चों को उनका नाम पूछ रहा है. What is your name? Question mark. So सबसे पहले मेहदी ने रिप्लाई किया. So Mehdi is a boy over here. Mehdi says hi Neil. Full stop. Enchanted. You remember Enchanted was the name of the first chapter. Delighted मतलब खुशी हुई आपको मिलके. Je m'appelle Mehdi. So my name is Mehdi. उसने बोला hi Neil, आपको मिलके बहुत खुशी हुई और मेरा नाम मेहदी है. So he will continue. Je suis Moroccan. Is I am Moroccan. So Morocco करके country, he's from that particular country. J'ai 23 ans. 23 is 23. So I am 23 years old. And it was Aisha and Robert, and here is Aisha and Robert. Full stop. And here is Aisha and Robert.
सेंक मिनवी प्लूटार्च। सो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या हुआ? 5 मिनट्स लेटर। सो स्टूडेंट्स इतने सारे कैरेक्टर्स आपने देख लिए। मेहदी एक नया कैरेक्टर आ गया है, आयशा एक नया कैरेक्टर आ गई है, और रॉबर्ट भी एक नया कैरेक्टर है, ठीक है। सो 5 मिनट्स लेटर। ओके, सो रॉबर्ट यहाँ पर कौन था स्टूडेंट्स? हमारा रॉबर्ट कैनेडियन है, आयशा तुनिसियन है, और मेहदी मेहदी इज मोरक्कन। फाइन। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट 5 मिनट्स लेटर with Maya arrives with Eric, full stop. So स्टूडेंट्स 5 मिनट के बाद क्या हुआ? माया आई थी एरिक के साथ. So Maya says, hi friends, hi friends, salut les amis, Sava. Sava is basically fine question mark. कि भाई सब ठीक है एकदम. Here is Eric. तो अब वो नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही है. Here is Eric and this is a friend. So basically she's making it clear, bro, this is just a friend. Okay, this is just a friend. This is a friend. Okay, तो भाई we are not even doubting you. So he is French and the interesting part is he is French. मतलब वो कहीं बाहर से नहीं आया. He's already उसका nationality French is. He already stays in France. Okay. So now Eric says hi, hi, delighted. Delighted is basically खुशी हुई आप सबको मिलके. And bienvenue of France. So welcome to France. हाँ, तो ये perfect sentence है. अब वो सारे बच्चों को बोल रहा है वेलकम टू फ्रांस, कि आप लोग हमारी कंट्री में आए हो, वेलकम टू फ्रांस फ्रेंड्स, फुल स्टॉप. Perfect. So if you guys want to take a screenshot of this entire part so far, you can do that, because now I'm going to move over to the next page. Okay. So I hope you guys have taken the screenshot so far. Okay. और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को आई अज्यूम कि तुम लोग को सारे स्टोरी भी समझ में आ रहा होगा. स्टूडेंट्स देखो मेरे पास यहाँ पर एक फोटो है, एंड आई वांट यू गाइस टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो. प्लीज नोट दिस डाउन. दिस आर द नेम ऑफ 8 कैरेक्टर्स, और सारे 8 कैरेक्टर्स की नेशनैलिटी दी हुई है. सबसे पहले नील है जो इंडियन है. ईरा इज ऑल्सो एन इंडियन. ईरा लड़की है इसलिए उसके इंडियन में देखो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एन ई, देयर इज स्पेलिंग चेंज. लोग इसमें और इसमें स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है, बिकॉज ईरा लड़की है इसलिए लास्ट में डबल एन ई आएगा. Abdel again a boy, Algerian है. Maya is a girl. Mauritian is basically she belongs from Mauritius. Robert लड़का है, Canadian है. Aisha is a girl, Tunisian, my favorite character. Mehdi Moroccan, okay, Moroccan. And finally Eric. Eric एक लड़का है, French. So आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो टेक्स्ट बुक के अंदर और एल्स इन नोटबुक. इंपॉर्टेंट है इसीलिए. Okay, fine. So I hope you guys have note down this. Now moving forward to the next again. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे. लेट्स गो. ओरल कॉम्प्रिहेंशन. सो बेसिकली ऊ सॉ les étudiants. फर्स्ट वन, ऊ सॉ les étudiants. तो स्टूडेंट्स देखो मैंने इसके आंसर्स भी कहीं पे ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं. सो फर्स्ट इज ऊ सॉ les étudiants का मतलब है वेयर आर द स्टूडेंट्स. वेयर आर द स्टूडेंट्स? सो द स्टूडेंट्स les étudiants sont dans la cafétéria. सो स्टूडेंट्स ये आपको आंसर पूरा टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे मिल जाएगा. द स्टूडेंट्स आर इन द कैफेटेरिया. द स्टूडेंट्स आर इन द कैफेटेरिया. आप क्या कर सकते हो? आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप उसको कॉपी कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से. ओके. सेकंड क्वेश्चन नाउ. अगेन सेकंड क्वेश्चन व्हिच सेज Qui a les cheveux blonds? Who has blonde hair? Qui a les cheveux blonds? So who has blonde hair? So इसमें यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट. रॉबर्ट आ ले cheveux blonds. अगर आप सिर्फ आंसर लिख के आ जाओगे रॉबर्ट, यू आर नॉट गेटिंग योर मार्क्स. यू हैव टू फ्रेम द एंटायर सेंटेंस प्रॉपर्ली. सो मैं रॉबर्ट लिखूंगा, बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस क्वेश्चन से अच्छे से कॉपी कर लूंगा. सो रॉबर्ट आ ले cheveux blonds. Third one. Now third one is students. Qui est avec Maya? Who is with Maya? So who is with Maya? So Eric is with Maya. याद है माया बाद में पीछे से आई थी और वो एरिक को लेकर आई थी. Eric is a French person. So the right way of framing the sentence, Eric est avec Maya. Fourth one, comment s'appellent les filles? What are the names of the girls? So what are the names of the girls? तो स्टूडेंट्स देखो टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं और 8 कैरेक्टर्स में 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं. फाइन. So les filles s'appellent. The girls name are Maya, Aisha and Ira. You can see आयशा के ऊपर आई के ऊपर डबल डॉट है. दैट इज कॉल्ड ट्रेमा. आई ट्रेमा बोलते उसको. आई ट्रेमा. सो कोई फर्क नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको उसको वो एक्सेंट है उसको आपको लर्न करना है. द गर्ल्स नेम इज माया, आया, आयशा एंड ईरा. ओके. एंड फिफ्थ वन. So let's go with the fifth one, students. Fifth one says, comment s'appellent les garçons? What are the names of the boys? So les garçons s'appellent Eric, Robert, Mehdi, Neil et Abdel. So total 5 characters है जिसके नाम मैंने as it is लिख दिए हैं. So what you guys can do, you just have to copy this down nicely. Moving forward, students, now we are on page number 36.
और पेज नंबर 36 पे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वोकैबुलरीज दी हमें। ल विसाज इज फेस, द फेस। देखो स्टूडेंट्स, आर्टिकल लगाना होता है, हर एक नाउन के पहले आर्टिकल लगाना होता है। मैस्कुलिन नाउन के पहले ल आता है, फेमिनाइन नाउन के पहले ला आता है, वॉवल होता है तो एल अपोस्ट्रोफ लगता है, एंड les फॉर एनी प्लूरल नाउन। ओके, दिस आर डेफिनेट आर्टिकल्स, इन सब का मीनिंग ध होता है। दिस आर डेफिनेट आर्टिकल्स, इसका मीनिंग होता है ध। ओके, चलो सो स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं भी इन सारे आर्टिकल्स के पहले, इन सारे वर्ड्स के लिए कोई ना कोई आर्टिकल प्लेस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट इज एल अपोस्ट्रोफ, लोरेल। लोरेल मीन स्टूडेंट्स ईयर होता है, ईयर ईयर। लोरेल लिख रहा हूँ फिलहाल मैं, सारे आर्टिकल्स डाल रहा हूँ। लने, मैस्कुलिन इसलिए ल आएगा, ये फेमिनाइन इसलिए यहाँ पे ला आएगा, ला लॉन्ग। दिस इज इन द प्लूरल फॉर्म, ले शवर। Again, this is in the plural form, lazier. Now this is in the plural form again, les dents. And finally, bush is a feminine noun, इसके पहले ला आएगा, ला बुश। फ्रेंच के अंदर स्टूडेंट्स हर एक नाउन के पहले आर्टिकल डालना कंपलसरी होता है। सो ओरल, ओरल का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, ईयर। ने का मतलब होता है नेज, लने नोज। ला लॉन्ग इज टंग। ले शवर इज हेयर। लेजियर आईज, प्लूरल फॉर्म है आईज। डॉ अगेन टीथ, एंड बुश इज माउथ। ग्रेट, ला बुश माउथ। सो आप लोग को इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पता होना चाहिए। यू हैव टू लर्न दिस स्पेलिंग वेरी नाइसली। रिटर्न प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फाइन। और स्टूडेंट्स, आप लोग को लर्न करना है ये कौन मैस्कुलिन फेमिनाइन है। आपको एग्जाम के अंदर ये एम एफ नहीं लिखा हुआ होगा। यू गाइस हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट लेटर ऑन इन द कमिंग अपकमिंग चैप्टर्स उसमें वो एम एफ वगैरह भी नहीं दिया होगा। एज एंड व्हेन यू कम अक्रॉस सच वर्ड्स, आपको डिक्शनरी चाहिए तो आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हो, पीछे अच्छे से डिक्शनरी में दिया हुआ है कौन सा नाउन मैस्कुलिन है, कौन सा नाउन फेमिनाइन है। Mostly it is said that nouns ending with e are feminine noun, but otherwise there are also nouns जिसके लास्ट में e होने के बावजूद वो masculine होते हैं। तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं, आपको लर्न करना ही होगा। Yep. चलो I'm going to drop this part now. Moving forward, students, आगे बढ़ेंगे अब हम। Let us communicate in French. Premier contact. Premier contact is first meeting or first contact. जब आप पहली बार मिलोगे। Again, left hand side पे formal है और right hand side में informal है। We are on page number 36. So first is comment vous appelez-vous monsieur? Comment vous appelez मतलब what is your name sir? What is your name, comma sir? So students, ये important है आपके लिए जानना कि अगर 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 आपको क्या करना होगा, एकदम फॉर्मली पूछना होगा अगर आप अपने सर्वर से बात कर रहे हो। So what is your name sir? Comment vous appelez-vous monsieur? कभी अगर आप और हम मिल गए तो स्टूडेंट्स, आप भी जब मुझे मिलोगे तो आप मुझे ये कॉमो तुतापेल नहीं पूछ सकते। देखो कॉमो तुतापेल का मतलब ही सेम होता है, व्हाट इज योर नेम। कॉमो तुतापेल मतलब भी होता है व्हाट इज योर नेम। मैं आपको कॉमो तुतापेल पूछ सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे कॉमो वूज अपले वो मसीह पूछना है, बिकॉज मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ। और ये फॉर्मल वाला पार्ट है और ये थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा। जस्ट वी आयशा, आई एम आयशा, या तो आई एम आयशा लिख सकती है। je m'appelle Julien Dupont, so my name is Julien whatever Dupont, D-U-P-O-N-T. So my name is Julien Dupont. Okay. So the left hand side is for the formal conversation and the right hand side is for informal. Comment vous appelez-vous monsieur? So je m'appelle Jainesh Kothari. Comment tu t'appelles? Je suis Jainesh Kothari. तो आप अपना नाम लिख सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड नाउ 36 पेज नंबर से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 37 के ऊपर। एंड वापस यहाँ पर थोड़ा फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फॉर्मल रहेगा। सो स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड इटसेल्फ, comment allez-vous monsieur? So how are you sir, question mark. So comment allez-vous? So उसने बोला je vais bien, très bien, merci, I am fine. ऐसे कौन बोलता है यार? I am fine, very fine, thank you. I am fine, very fine, thank you. Okay. So como ça va का मतलब भी स्टूडेंट्स वही होता है, how are you होता है, how are you, but this is an informal one. So ça va très bien is I am fine, ça va très bien, I am fine. या वेरी लिखा हो तो त्रे मतलब वेरी होता है, त्रे मतलब तो आई एम वेरी फाइन लिख सकते हैं, आई एम वेरी फाइन। लुक एट दिस गर्ल इज सेइंग पामाल इज नॉट बैड, पामाल नॉट बैड। Sana Vapa due to, life is not going good at all, life is not going good at all. So आप ये भी लर्न कर सकते हो अगर कभी आपको ऐसा कुछ बोलना हो तो। Sana Vapa due to मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, things are not working out बोल सकते हैं, things are not working out, Sana Vapa due to। अगेन कॉमो तालेबू स्टूडेंट्स, कॉमो तालेबू मतलब हाउ आर यू होता है और यहाँ पे मैडम वर्ड यूज किया, हाउ आर यू मैडम।
सो उसने बोला है je vais bien merci et vous. I am fine, thank you. And what about you? And what about you? And what about you? I am fine, thank you. And what about you? I am fine, thank you. And what about you? Great. Chalo. So students, if you think that I'm going too fast or if you think I'm going too slow, तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं सारी बातों का ध्यान रख सकता हूँ. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली वट एवर आई एम टीचिंग यू गाइज. आप लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छे से ले लो और आप लोग को बाद में इन सब की वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है. सो देखो यहाँ पे इसने लिखा है मुआउसी. मुआउसी का मतलब होता है मी ऑल्सो या मी ऑल्सो या सेम सेम ईयर बोल सकते हैं, सेम ईयर. एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखिए तो मी ईयर मी ऑल्सो हो गया. ओके. नेक्स्ट इज द वीकेंड सावा. सो हाउस द वीकेंड. हाउस द जोश नहीं स्टूडेंट्स, हाउस द वीकेंड की बात चल रही है. कल ही मैंने उरी मूवी देखी थी, अमेजिंग मूवी. सो हाउस द वीकेंड क्वेश्चन मार्क. वी सावत रेबिया इज अगेन यस वेरी नाइस. यस वेरी नाइस. Yes, very nice. Say superb. It's superb. It's superb. No, Sanavapa due to is again, life is not going good at all. No, things are not working out. Life is, yeah, it was not good. It was not good. Weekend की बात है, it is not good at all. कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो. इसका मतलब इंडिकेशन है कि things were not working out. बराबर नहीं चल रहा था सब कुछ. Okay. तो यहाँ पे पेज नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया है. And going with let us practice now students. लोगों ने हमें दो एक्सरसाइज दी, हम दो एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, यू आर इन अ बैड मूड एंड अ फ्रेंड आस्क्स सावा. यू आर इन अ बैड मूड ब्रो. तो बैड मूड में तुम लोग को सावा तो हम लिख सकते हैं अभी फिलहाल. तो सा न वा पा द्यू तो अभी हमने सीखा है. बच्चों का फेवरेट होता है ये सा न वा पा द्यू तो. घूमते फिरते सा न वा पा द्यू तो बोलते हैं. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी के नीचे सी सेडिल आएगा. अगर आपको एक्जैक्टली देखना है वो कैसे होता है तो आप अपने व्हाट्सएप पे सी लेटर को प्रेस करके रख सकते हो और वहां पे तो आपको पता चलेगा एक्जैक्टली सी सेडिल कैसे होता है. सा न वा पा द्यू तो. Second one, your boss asks you comment talegu. So अगर बॉस आपको पूछे how are you, it's a formal question. Tell them je vais très bien. je vais bien लिख सकते हो. If who मतलब and what about you. आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना है that you are interested in the conversation. ऐसे नहीं कि बॉस पूछे how are you और आप रोने ही बैठ जाओ यार things प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में बहुत. बॉस इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको how are you पूछ रहा है. सो आप भी से बोलो je vais bien et vous, मतलब keep it very formal. You have done very well in your test and a friend asked Sava. So Sava, तो आप Sava का आंसर Sava लिख सकते हो खाली, या सावा त्रेबिया लिख सकते हो. सावा त्रेबिया फुल स्टॉप. ओके. सो लेट्स अज्यूम कि सब अच्छा चल रहा है. सावा त्रेबिया आपको चाहिए तो ये सी सडिला वाला पार्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट. और मेरे कीपैड पे अभी फिलहाल सी सडिला वाला पार्ट है नहीं. ओके चलो ठीक है. ई के ऊपर स्टूडेंट्स ग्राम आएगा. सावा त्रेबिया. A new student asks your name. So new student asks your name. तो मैं क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स. मैं जमोपेल जैनेश कोठारी. ओके. जमोपेल जैनेश कोठारी. Great. Question number 2 says rearrange the jumble dialogue. So students हमें dialogues दिए हुए हैं, पहले हम सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं. First is pas mal et toi. इसका मतलब है not bad, not bad. And what about you? Not bad and what about you? चलो ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा. Next is salut Andrin. Salut Andrin is hi Andrin. सावा त्रेबिया. So सावा त्रेबिया का हम लोग स्टूडेंट्स बताएं. I am very fine. I am very fine. और एक लास्ट हाई ज़ारा. हाई ज़ारा फुल स्टॉप फाइन क्वेश्चन मार्क, या तो हाउ आर यू बोल सकते हैं. चलो स्टूडेंट्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन कौन सा आएगा वो हमें जानना इंपॉर्टेंट है. सबसे फर्स्ट मेरे अकॉर्डिंगली हाई एंड्रीन आ सकता है. फर्स्ट वन हाई एंड्रीन. सो होगा हाई सारा हाउ आर यू. तो उसने पूछा होगा पामाल नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड. और फाइनली सावा त्रेबिया व्हाट अबाउट यू. व्हाट नॉट बैड व्हाट अबाउट यू. तो उसने बोला होगा आई एम वेरी फाइन. परफेक्ट. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है. मुझे एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है आप लोग को, तो प्लीज वीडियो मत बंद करना. देखो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आई एम ऑल्सो टेकिंग ऑनलाइन जूम लेक्चर्स विद मेनी किड्स who don't stay in my area, but I am taking those lectures online Zoom के ऊपर, और बहुत अमेजिंग चल रहा है. 12th के मेरे पास नहीं करके 30 से 35 स्टूडेंट्स है जो they don't live into my vicinity or area and they are very far away from, they are from Mumbai, they are from Pune, Nashik.
So students, अगर आप लोग को भी जुड़ना हो हमारे साथ और अगर आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हो तो यू गाइस कैन गिव मी अ कॉल. ओके, नंबर तो ऑलरेडी सब डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फिलहाल. 9664532588 is my personal number. And students, if not this then you can, yeah, you can contact us on YouTube, on Instagram. You can just comment us anywhere and we will be there. So there are several ways to contact us. और those, वो जो lectures होंगे ऑनलाइन लाइव लेक्चर स्टूडेंट्स, वो पेड होता है. those are not free, but believe me it is more fruitful, because काफी बच्चों को काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी सारी चीजें जिनके मैंने वीडियोस अब तक अपलोड नहीं किए हैं. तो अगर आप लोग को वो सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी कैन टॉक ऑन इट. व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हाउएवर यू फील कंफर्टेबल. थैंक यू सो वेरी मच. और स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट ये है, प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर लो. ओके, आपकी कॉलेज ग्रुप्स वगैरह में डाल दो. एंड बहुत मेहनत से प्लेलिस्ट वगैरह बना रहा हूँ मैं. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज टू गेट some more views and more watch time. So thank you so very much, friends. It was nice having all of you. Bye bye. Take care and have a nice day.